Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So in the last lecture, we have completed the topic of receiver characteristic, and the last characteristic of receiver we have completed in our last lecture, that is image frequency, and we have seen some numericals also related with the image frequency concept. As I have told you in my last lecture, that our next lecture session will be on the basis of FM generation types. What are the FM generation techniques we are going to see in this our lecture. So today's our lecture topic is what are the different type of FM generation techniques, and we are going to see each and every techniques one by one with their circuit diagram or with in aspect of their block diagram. So first of all, we want to make understand, we want to first clear what are the different types of FM generation techniques, on what basis they are classified, and how many of the generation techniques are there which we have to study in our subject, in our syllabus. So as you can see, I am sharing you the presentation. In our presentation, I am clearly showing you the FM generation classification. So FM generation classification is classified on two aspects. The first one is direct method and the other one is indirect method. What do you mean by direct method and what do you mean by indirect method? We are going to see in next slide. Now, further, direct method is classified into two types: varactor diode modulator and reactance modulator. Varactor diode modulation is one type of direct method generation, FM generation, and the other one is reactance modulation technique. The other one, which is classified as indirect method, in indirect method, there is one type, Armstrong method. This Armstrong method is on the basis of block diagram. We are going to understand how this FM generation is classified. I am showing you in this slide. So first, the FM generation is classified on two aspects: direct method and indirect method. Why the name is direct method, I am going to explain you in my next slide. Under direct method, there are two types which we have to study with the terms of circuit diagram also: varactor diode modulator, reactance modulator. And in indirect method, the one type which we have to study is Armstrong method. So we are going to see why the name is given direct method, why the name is given indirect method. Just you must be know, if the question will be asked in your examination for 2 marks, write the types of FM generation techniques. So write the types of FM generation techniques. You have to just mention the name of the different techniques of FM generation. As we are seeing, the first one is varactor diode modulator, the second one is reactance modulator, and the third one is Armstrong method. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गिव द टाइप्स ऑफ एफएम जनरेशन, तो गिव द टाइप्स ऑफ एफएम जनरेशन में आपको ये तीन टाइप्स देने का रहेगा: वेरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और आर्मस्ट्रांग मेथड. Now we are going to see, understand what are the different types and on what basis, on what aspect these types are classified. Okay, so this new slide is visible to everyone. I am sharing you the presentation of FM generation. Is this is visible to you? Please reply in chat box. Is this FM generation slide is visible to you? PPT presentation. Reply in chat box. Any one of you can reply in chat box so that I'm going to understand, yes, this slide is visible to you. Okay, thank you. Thanks for your reply. Now I can go ahead as this slide is also visible to you. So as you can see in this presentation, FM generation, the FM generation is classified on two aspects: direct method and indirect method. Why the name is given direct method means we are directly generating the FM frequency when the frequency of carrier is modulated by information signal. तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में आपको क्या समझ में आ रहा है, इधर पे जब डायरेक्टली हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मॉड्यूलेट होगी इन्फॉर्मेशन सिग्नल से, तो वो एस्पेक्ट जो बनेगा वो डायरेक्ट मेथड में बनेगा. अभी एफएम जनरेशन मतलब आपको क्या जनरेट करना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना है.
तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यानी कैरियर में फ्रीक्वेंसी चेंज होगा डायरेक्टली किसकी वजह से, इंफॉर्मेशन सिग्नल की वजह से, तो वो मेथड जो बनेगा वो डायरेक्टली मेथड बनेगा। मतलब हम लोग ने इंफॉर्मेशन सिग्नल ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर को क्या किया, मॉड्यूलेट किया है। तो जब इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल डायरेक्टली कैरियर को फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट करता है तो वो मेथड बनता है डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डायरेक्टली हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड नहीं करते। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इधर पे दिया हुआ है व्हेन द फेस ऑफ कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिग्नल। हम लोग ये टेक्निक में पढ़ेंगे कि इस तरीके से फेस मॉड्यूलेशन होके आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिलेगा। तो एक है डायरेक्ट मेथड जो डायरेक्टली आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट करोगे, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मेथड यानी हम लोग फेस मॉड्यूलेशन से क्या चीज़ को निकालेंगे, एफएम को निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को निकालेंगे। तो एक इनडायरेक्ट मेथड है और दो टेक्निक्स जो दो टाइप से वो डायरेक्ट मेथड है, यानी वो सर्किट में आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा। ये टेक्निक में आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव नहीं मिलेगा, फेज मॉड्यूलेटेड से आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करेंगे। तो ये तीन टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आपको टाइप्स आता है क्वेश्चन में, गिव द टाइप्स ऑफ एफएम जनरेशन, तो एफएम जनरेशन करने के लिए टाइप्स बताओ, तो आपको ये तीन नाम मेंशन करना है, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और आर्मस्ट्रांग मेथड जिसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है, एक्सप्लेन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। तो आपको ये समझना है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन कौन सा टाइप है, कौन सा टेक्निक है, वो आर्मस्ट्रांग मेथड। तो ये एक्सप्लेन करना रहेगा। बाकी के दोनों जो टाइप्स वो डायरेक्ट मेथड है, मतलब डायरेक्टली ये सर्किट से हम लोग एफएम वेव जनरेट करेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि फ्रॉम फेस मॉड्यूलेशन वी आर गोइंग टू जनरेट एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो लेट अस गो अहेड फॉर द फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, कैसे जनरेट होगा एफएम और क्या सर्किट इन्वॉल्व होती है वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर की, वो हम लोग डिटेल में अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो बिफोर गोइंग फॉर डिटेलिंग वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड के पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉजिक है, पहले वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, हियर इट इज शोइंग यू वैरेक्टर डायोड। अब ये वैरेक्टर डायोड कौन सा डायोड है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायोड तो पढ़े सेकेंड सेमेस्टर में, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आप लोग ने डायोड पढ़े। जैसे आपने नॉर्मल पी एन जंक्शन पढ़े, जेनर डायोड पढ़े, एलईडी डायोड पढ़े, फोटो डायोड पढ़े। तो उसी तरीके से एक और वन टाइप जो अभी आप लोग के सामने नया टाइप आया है, जो आप लोग पुराने सेमेस्टर में तो नहीं पढ़े लेकिन आपके सामने अभी यहाँ पे आया वैरेक्टर डायोड। इसके पीछे कुछ डिफरेंट, कुछ खास प्रिंसिपल नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ने पढ़े हुए अपने सेकेंड सेमेस्टर में ही। तो ये वैरेक्टर डायोड कौन सा टाइप का डायोड है, तो वैरेक्टर डायोड वो टाइप का डायोड है जो रिवर्स बायस मोड में यूज होता है। रिवर्स बायस मोड में, जैसे कि आप लोग ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हुए, रिवर्स बायस मोड में और कौन से डायोड्स यूज होते हैं, जैसे आपने फोटो डायोड के बारे में पढ़े होंगे, जेनर डायोड के बारे में पढ़े होंगे। तो ये जेनर डायोड और फोटो डायोड जिस तरीके से रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट किए जाते हैं, उसी तरीके से वैरेक्टर डायोड इज आल्सो नथिंग बट अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं कौन से बायसिंग मोड में, रिवर्स बायस मोड में। तो ये रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करते हैं। अब इसके पीछे आपको लॉजिक तो पता है कि जब डायोड को रिवर्स बायस मोड में हम लोग ऑपरेट करते हैं तो बीच की ये जो रीजन है, ये जो रीजन है डिप्लीशन रीजन जिसको बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग रीजन, ये विड एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो ये विड एग्जिस्ट होती है। अब जैसे जैसे आप लोग रिवर्स बायस मोड का सप्लाई बढ़ाएंगे तो ये पर्टिकुलर बीच की रीजन की जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। तो यहाँ पे जो वैरेक्टर डायोड का कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर टू दैट ओनली, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, जिसको हम लोग रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करते हैं। तो रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करने से क्या होता है, वो डायोड कंडक्ट नहीं करता है, बीच की जो डिप्लीशन रीजन है, बीच की जो नॉन कंडक्टिंग रीजन है, तो वो सप्लाई जैसा नेगेटिव सप्लाई बढ़ाते जाओगे उसकी विड्थ क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जितना कम रिवर्स सप्लाई रहेगा उतनी कम उसकी क्या रहेगी, विड्थ रहेगी। जितना मोर सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज आप बढ़ाओगे, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग रीजन की जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने सिंबल भी दिया हुआ है वैरेक्टर डायोड का, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायोड का सिंबल पढ़ चुके हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे वैरेक्टर डायोड का भी सिंबल दिया हुआ है।
ये सिंबल में आपको क्या खास बात नजर आ रही होगी, ये नॉर्मल अपना पीएन जंक्शन डायोड के जैसा ही सिंबल है, लेकिन इसके सिंबल में आगे एक देखो ये कैपेसिटर के जैसा सिंबल दिया हुआ है, कैपेसिटर के जैसा सिंबल दिया हुआ है, कैपेसिटर दो प्लेट। आपने कैपेसिटर का सिंबल तो देख चुके होंगे, कैपेसिटर के सिंबल में क्या होता है, जस्ट नथिंग बट टू प्लेट्स होती है और बीच में डायलैक्ट्रिक होता है, आजू बाजू दो प्लेट्स होती है और बीच में क्या होता है, डायलैक्ट्रिक। तो ये जो नॉन कंडक्शन रीजन है ना, जो वैरेक्टर डायोड में जो मैं बता रहा हूँ आपको नॉन कंडक्शन रीजन, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो दो प्लेट होती है ना उनके जैसा ये काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है। जैसे जैसे आप नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे उसकी विड्थ क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, उसकी विड्थ क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो यही चीज आप लोग को अंडरस्टैंड करना है इसके सिंबल में भी। इसके सिंबल में आपको क्या दिया हुआ है, वैरेक्टर डायोड के सिंबल में ये कैपेसिटर के जैसा सिंबल इसके साथ में जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। यानी इससे आपको क्लियर होता होगा, समझ में आएगा, अब आपको क्लियर होगा कि यानी ये डायोड का जो कुछ रोल है, जो काम है, वो कुछ कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। अब देखो नाम देखो इसका, वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड मतलब इट इज नथिंग बट वेरिएबल कैपेसिटर। अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वैरेक्टर डायोड इट इज नथिंग बट वेरिएबल कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या होता है, वेरी होता है, चेंज होता रहता है। तो ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल है। इस सिंबल में आपको जो आगे दो प्लेट नजर आएगी, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के सिंबल में इसमें जोड़ दिया गया है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, इधर पे दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन डी, एप्सिलॉन A अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन आप लोग ने पढ़ चुके होंगे, परमिटिविटी, एप्सिलॉन डायलैक्ट्रिक। तो बीच का जो रीजन होता है, कैपेसिटर के बीच का जो गैप का जो रीजन होता है वो डायलैक्ट्रिक होता है। अब डायलैक्ट्रिक एयर हो सकता है या और भी कोई दूसरा चीज हो सकता है, कोई दूसरे मीडियम में आप यूज करोगे, तो इट इज डायलैक्ट्रिक। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एप्सिलॉन डायलैक्ट्रिक, ए एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और अपॉन में डी, तो डी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अब ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखोगे तो इनवर्स रिलेशन में, किसके इनवर्स रिलेशन में, डी के इनवर्स रिलेशन में, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स के इनवर्स रिलेशन में कैपेसिटेंस। अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा बिटवीन टू प्लेट्स उतना ज्यादा क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा। कम डिस्टेंस ज्यादा कैपेसिटेंस, ज्यादा डिस्टेंस कम कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन डी से आपको ये फॉर्मूले से इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर नॉन कंडक्शन की विड्थ बढ़ती है, नॉन कंडक्शन की विड्थ बढ़ती है तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स बढ़ता है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस कम रहेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे उसका प्रिंसिपल हम लोग यूज किए अपने वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर में। अगर लो वोल्टेज है, नेगेटिव रिवर्स सप्लाई वोल्टेज अगर आप कम अप्लाई करते हो, अगर यहाँ पे जो रिवर्स बाय सप्लाई वोल्टेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उस डायोड को, अगर वो कम अप्लाई करते हो तो ये जो नॉन कंडक्शन रीजन की जो विड्थ है वो कम होगी। नॉन कंडक्शन रीजन की विड्थ कम होगी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कम है तो क्या चीज बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन से क्या बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो मोर कैपेसिटेंस। अगर लो वोल्टेज दे रहे, सप्लाई नेगेटिव वोल्टेज कम है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स कम होगा, नॉन कंडक्शन रीजन की विड्थ कम होगी, तो क्या चीज बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सिमिलरली दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप नेगेटिव रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे, ज़्यादा करोगे, इंक्रीज करोगे, तो ये नॉन कंडक्शन रीजन की विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। और ये नॉन कंडक्शन रीजन की विड्थ बढ़ेगी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स बढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स बढ़ा तो ये रिवर्स रिलेशन है, तो क्या चीज़ बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स बढ़ा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस कम, कैपेसिटेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, कैपेसिटेंस कम। तो ये चीज़ अभी आपको क्लियर हो गई। अगर इंक्रीज वोल्टेज करेंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, लेस वोल्टेज करेंगे, नेगेटिव रिवर्स सप्लाई वोल्टेज कम देंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब ये मैंने आपको जो समझाया ना, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन अभी किसका दिया, वैरेक्टर डायोड के बारे में दिया, जो आपने नहीं पढ़े थे पुराने सेमेस्टर में। तो ये वैरेक्टर डायोड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सर्किट में यूज हुआ है, इसका नाम ही वही है, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। तो यानी जाहिर सी बात है वैरेक्टर डायोड यूज होगा। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया, एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू अबाउट द वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड का कैसे प्रिंसिपल होता है, वर्किंग, उसका सिंबल क्या होता है और क्या कॉन्सेप्ट है, वो एक्सप्लेनेशन दिया।
अब ये वैरेक्टर डायोड का यूज कैसा हुआ है अपने मॉड्यूलेटर में, वो अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस वैरेक्टर डायोड इज यूज इन अवर एफएम मॉड्यूलेटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस. तो क्या प्रिंसिपल है वो अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है. अब देखो इधर पे क्या प्रिंसिपल इधर पे यूज हुआ है. आपके सामने सबसे पहले मेन जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है, यहाँ पे क्या नजर आ रही है, दिस इज एलसी टैंक सर्किट, ट्यून सर्किट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर. ये उसको बोलते हैं ट्यून सर्किट, टैंक सर्किट बोलते हैं. अब ये टैंक सर्किट का काम क्या होता है, आपको ऑसिलेशंस जनरेट करके देता है. ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस मतलब आपको समझ में आया, साइनोसाइडल वेव. तो ये जो एलसी टैंक सर्किट है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एल एंड सी, तो ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एल एंड सी क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑसिलेशंस को जनरेट करने के लिए. ऑसिलेशन को जनरेट करने के लिए मतलब साइन वेव टाइप का सिग्नल जनरेट करता है. ऑसिलेशंस इज नथिंग बट साइन वेव टाइप वेव फॉर्म, ऑसिलेशंस. तो एलसी ट्यून सर्किट से आपको क्या मिलता है, ये रिस्पॉन्स मिलता है, ऑसिलेशंस टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है, वेव फॉर्म मिलता है. अगर हम लोग ये पर्टिकुलर एलसी टैंक सर्किट में एक और कैपेसिटेंस पैरेलल में लगा देंगे और ये कैपेसिटेंस पैरेलल में लगा के उस कैपेसिटेंस को वेरी करेंगे, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा. अगर ये पैरेलल में ये कैपेसिटर के साथ में कोई दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में लगा दे और वो कैपेसिटर को वेरी करें, यानी उसका कैपेसिटेंस चेंज करते रहें, तो ओवरऑल जो एलसी टैंक सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा. और जैसे ही इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा तो वो ऑसिलेशंस में चेंज मिलेगा आपको. आपने ये तो जानते होंगे एक्सी इजिकल्स टू 1/2 पाई एफ सी, एक्सी इजिकल्स टू 1/2 पाई एफ सी. तो जितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी. तो ये जो एलसी टैंक सर्किट है, अगर एलसी टैंक सर्किट में अगर कैपेसिटर को वेरी करते रहेंगे हम लोग, उसका कैपेसिटेंस चेंज करते रहेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा हम लोग को. अगर ये कैपेसिटेंस चेंज होगा तो ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, चेंज ऑब्जर्व होगा. तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आते हैं अपने वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर में. हम लोग क्या करते हैं, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर को, वैरेक्टर डायोड को क्या करते हैं, ये एलसी टैंक सर्किट के साथ में पैरेलल में लगा देते हैं. और जब जब वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस चेंज होगा तो उसी के हिसाब से ये एलसी टैंक सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज होगा. और ये एलसी टैंक कैपेसिटेंस जब चेंज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा. ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इधर पे. तो देखो कैसा जा रहा है इधर पे, फ्लो कैसा जा रहा है. अगर वोल्टेज बढ़ता है, नेगेटिव रिवर्स सप्लाई वोल्टेज वैरेक्टर डायोड में हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो नॉन कंडक्शन विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी. तो नॉन कंडक्शन विड्थ बढ़ेगी यानी डिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या चीज़ कम होगा, कैपेसिटेंस कम होगा. और कैपेसिटेंस कम होगा तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. एक्सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी. अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी. तो ये चीज़ इधर पे यूज़ हुआ है कि जब वोल्टेज बढ़ा देंगे वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस में, तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस कम होगा और उसका कैपेसिटेंस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज को कम कर देंगे, वोल्टेज नेगेटिव रिवर्स सप्लाई वोल्टेज कम देंगे, तो नेगेटिव रिवर्स सप्लाई वोल्टेज कम देने की वजह से जो कैपेसिटेंस है उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में कम हो जाएंगे. कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई. कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई. मतलब क्या, इन शॉर्ट मतलब क्या समझाऊं, जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जब वोल्टेज कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने लेके आए हैं अपने कहाँ पे, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट में. तो ये वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट आपके सामने नजर आ रही है. दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर. अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, तो आपको ये सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसका वर्किंग एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा. तो अभी हम लोग को ये अंडरस्टैंड करने का है कि ये वैरेक्टर डायोड किस तरीके से यूज हुआ है हमारी सर्किट में. तो ये वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट है. सबसे पहले इधर पे राइट साइड के फ्रंट एंड में आपको क्या नजर आ रहा है, एएफ ट्रांसफार्मर. एएफ ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर. ये प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में. तो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल. तो इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में. तो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अप्लाई किए
अब सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या चीज दे रहे हम लोग, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है माइनस वीबी. दिस माइनस वीबी मीन्स व्हाट, नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज. तो जो नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज जो वैरेक्टर डायोड को चाहिए, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज, नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज, वो हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सेकेंडरी ऑफ एएफ ट्रांसफार्मर में. प्राइमरी ऑफ एएफ ट्रांसफार्मर में अपना इंफॉर्मेशन सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. और सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या हम लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अब क्या होगा, जो नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज आप दे रहे हो सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर में, वो ऐड हो जाएगा किसके साथ में, ऐड हो जाएगा अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ में. क्योंकि इंफॉर्मेशन सिग्नल आपने कहाँ पे दियो, प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर में. देखो आपको रोल तो पता है ना, आपको करना क्या है, टास्क क्या है. आपका टास्क क्या है, ये सर्किट के थ्रू आप लोग क्या जनरेट करने वाले हो, एफएम वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. और ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगा. जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी. तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए. तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप लोग ने अप्लाई किया प्राइमरी ऑफ एएफ ट्रांसफार्मर में, और सेकेंडरी ऑफ एएफ ट्रांसफार्मर में आप क्या अप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो. तो ये नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ में ऐड हो जाएगा. अब जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज इंक्रीज होगा, और जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज जो उसके साथ में ऐड हो रहा है वो कम होगा. मतलब इन शॉर्ट, दिस नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज ज्यादा कब होगा, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. और ये नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज कम कब मिलेगा, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो कम ज्यादा होता रहता है, आपको तो पता ही है, साइन वेव टाइप का सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो कभी एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कभी एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है. तो जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज उसके साथ में ऐड होकर ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा. और जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो ये नेगेटिव डीसी बायस वोल्टेज उसके साथ होकर कम एम्पलीट्यूड का बनेगा. अब आपके सामने देखो आगे क्या है, वो जरा देखो, वो ध्यान दो. यहाँ पे आपके सामने जो चीज नजर आ रही है, इट इज गिवन हियर RFC, जिसका सिंबल थोड़ा इंडक्टर टाइप का है. तो ये चोक है, इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक. चोक इज नथिंग बट इंडक्टेंस ओनली, लेकिन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला चोक है. रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो ऑपरेट होता है इंडक्टर, उसको इसके लिए इसके रिप्रेजेंट किए हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक. अब इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस RFC. तो RFC का टास्क ये है कि ये DC सिग्नल को पास करता है और AC सिग्नल को ब्लॉक करता है, अपोजिट ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम ये होता है कि वो AC कंपोनेंट को आगे पास करता है, DC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है, ये हम लोग जानते हैं. तो दो चीज आपके सामने आ रही है, वैरेक्टर डायोड के पहले दो चीज आ रही है सामने. एक सबसे पहले क्या आ रहा है, RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, और दूसरा क्या आ रहा है, कैपेसिटर पैरेलल में रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक सीरीज में. तो अब ये चीज होने की वजह से क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक क्या पास कर रहा है, DC. तो DC कंपोनेंट बराबर वैरेक्टर डायोड के पास जा रहा है, और बाईपास कैपेसिटर CB क्या कर रहा है, AC कंपोनेंट को पास कर रहा है. यानी यहाँ से अगर जो DC कंपोनेंट आएगा कैपेसिटर में वो ब्लॉक करेगा और AC कंपोनेंट को पास करेगा. तो देखो वो AC कंपोनेंट पास होके सीधा डायरेक्टली क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, इसलिए ये पैरेलल में. यानी ये बाईपास कैपेसिटर AC कंपोनेंट को पास करके सीधा ग्राउंड करेगा और DC कंपोनेंट को आगे भेजेगा. और उसी तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक भी क्या कर रहा है, DC कंपोनेंट को आगे पास कर रहा है, AC कंपोनेंट को ब्लॉक कर रहा है. ये क्यों करवा रहे हैं हम लोग, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैरेक्टर डायोड को क्या चाहिए, नेगेटिव DC बायस वोल्टेज चाहिए. ओनली DC बायस वोल्टेज पे काम करेगा डायोड, डायोड DC पे काम करेगा. नेगेटिव DC बायस वोल्टेज चाहिए, जब उसका वेट जो बढ़ेगा कम होगा. तो हम लोग को DC वोल्टेज पहुंचाना है, इसके लिए ये दोनों का एक्स्ट्रा केयर लिया हुआ है, RFC और बाईपास कैपेसिटर. अगर कोई AC कंपोनेंट है तो वो बाईपास हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और DC कंपोनेंट है तो वो वैरेक्टर डायोड तक पहुंचेगा. अब ये नेगेटिव DC बायस वोल्टेज जो मिल रहा है वो किसके हिसाब से मिल रहा है, अपने को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से मिल रहा है. जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो नेगेटिव DC बायस वोल्टेज ज्यादा होगा. जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो नेगेटिव DC बायस वोल्टेज कम होगा. अब ये जो आपको वैरेक्टर डायोड पे नेगेटिव DC बायस वोल्टेज कम ज्यादा मिल रहा है, तो इसका काम क्या होता है, जब जब इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका कम होगा. और ये कैपेसिटेंस जो कम होगा, अब देखो ये किसके पैरेलल में आ रहा है, ये लास्ट स्लॉट आपको दिख रहा है, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू. ये क्या चीज है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है ऑसिलेटर ट्यून सर्किट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ LNC.
तो ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एल एल सी, एल और सी के कंपोनेंट में ये ट्यून सर्किट के पैरेलल में क्या आ गया, वैरेक्टर डायोड आ गया। तो जब जब वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस चेंज होगा तो ओवरऑल ये ट्यून सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज होगा, और ये ट्यून सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, लेकिन जब भी इसमें से कोई भी पैरामीटर चेंज होगा, सी कंपोनेंट अगर वेरी होने लग गया तो सी कंपोनेंट वेरी होने लग गया तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लग जाएगी। और ये हम लोग क्या करवा रहे हैं, किसके थ्रू करवा रहे हैं, ये वैरेक्टर डायोड के थ्रू करवा रहे हैं। तो ये एलसी टैंक सर्किट के पैरेलल में हम लोग ने क्या लगाया, वैरेक्टर डायोड को लगा दिए। अब वैरेक्टर डायोड क्या होगा, जब जब उसको सप्लाई वोल्टेज में वेरिएशन मिलेगा उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, और ये जो कैपेसिटेंस चेंज होगा वो किधर पे इफेक्ट दिखाएगा, ये एलसी टैंक सर्किट में इफेक्ट दिखाएगा। तो इनडायरेक्टली वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस चेंज हो गया, एलसी टैंक सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज होगा, और ये कैपेसिटेंस चेंज कहाँ पे रिजल्ट देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज देगा। तो अब पूरा अच्छे से समझा दूं तो मतलब क्या होगा, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ने से वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस कम होगा। वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस कम होने की वजह से ओवरऑल ये एलसी टैंक सर्किट का कैपेसिटेंस कम होगा, और एलसी टैंक सर्किट का जब कैपेसिटेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा। यानी जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। अब दूसरा एस्पेक्ट, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो ये वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस ज़्यादा मतलब ये ओवरऑल एलसी टैंक सर्किट का कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, और जब एलसी टैंक सर्किट का कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, कमी आएगी। यानी जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम तो फ्रीक्वेंसी विल बी लेस, व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इज मोर फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। तो इनडायरेक्टली हम लोग ने क्या कर दिए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से यहाँ पे एलसी टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इज मोर, LC टैंक सर्किट फ्रीक्वेंसी इज मोर। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इज लेस, LC टैंक सर्किट फ्रीक्वेंसी इज लेस। यानी अब फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लेके आ गए ना हम लोग, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लेके आ गए, फ्रीक्वेंसी में चेंज लेके आ गए। सो दिस इज नथिंग बट हाउ वी आर जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव फ्रॉम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो वैरेक्टर डायोड सर्किट को हम लोग ने यूज करके क्या किए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से हम लोग ने क्या किए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट किए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हुआ कि नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो दिस इज हाउ वी आर जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड का रोल यूज हुआ है कैपेसिटेंस को वेरी कराने में। कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया हूँ, सर्किट डायग्राम ऑफ वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। तो सर्किट डायग्राम ऑफ वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर में मेन रोल जो है वो वैरेक्टर डायोड का है। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन करवाया किसका, वैरेक्टर डायोड का। सो वैरेक्टर डायोड क्या है वो आपको पहले क्लियर कराया, इट इज़ नथिंग बट नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ओनली, बट इट इज़ ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस मोड। तो रिवर्स बायस मोड का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, अगर रिवर्स बायस मोड में हो तो डायोड कंडक्ट नहीं करता है, और उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो कम ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से डिपेंड करती है। जितना कम रिवर्स सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना कम डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी, लेकिन जितना ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा विड्थ उसकी बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने यूज़ किए उसको वेरिएबल कैपेसिटर के जैसा बनाने का। तो वेरिएबल कैपेसिटर के जैसा ये काम कर रहा है, और ये वेरिएबल कैपेसिटर का जैसा काम जो है वो हम लोग अपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वे जनरेशन करने में यूज़ किए। तो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। और ये वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट में हम लोग ने वैरेक्टर डायोड का रोल देखे कि जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ये वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस कम होता है, कैपेसिटेंस कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होता है। और जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है तो वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, कैपेसिटेंस ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी लेस जनरेट होती है। सो दिस इज हाउ वी आर जनरेटिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय यूजिंग वैरेक्टर डायोड। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश किया हूँ वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट फॉर टुडेस लेक्चर। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ चीज़ नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो, मैसेज करो, मैं आपको वो चीज़ वापस से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लेकिन मैं जो रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा उसको वापस से दोबारा आप लोग देखना, तो शायद वो चीज़ वापस आपको क्लियर हो पाएगी। सो
थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। इसी तरीके से आप लोग ज्वाइन करो लेक्चर को, आगे सिलेबस अपना बढ़े। आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो मैं लेक्चर कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो सिलेबस कम होता जाएगा। तो स्टे एट होम, स्टडी वेल, ध्यान दो थोड़ा, घर पे रहो, पढ़ाई करो, स्टडी करो। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।